Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. We had already started a class 11th NCERT chapter, that is chapter number 13, photosynthesis in higher plants. Okay? Now, in this photosynthesis chapter, the first lecture is already over, you can say, where we had discussed the history, and in history we had discussed like many concept, okay, and many scientists जिन्होंने अपनी अपनी थियोरी को पुट फॉरवर्ड किया और फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन किया. ठीक है. नाउ उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में, दैट इज रॉ मटेरियल्स. ठीक है. तो ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो हमको फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड रहेगी. तो सबसे पहला स्क्रीन पे आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. व्हाट इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाउ हियर? In land plants, okay, in land plants the carbon dioxide is obtained from the atmosphere through the stomata. So through stomata, you know that stomata are present on the upper as well as the lower epidermis. ओके खास करके लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा देखने मिलते हैं, जो कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप लोगों ने सीखा है. तो थ्रू दैट ओनली द गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस. ओके सो कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी थ्रू अंदर जाएगा. ओके इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज यू कैन से ऑफ कार्बोनेट्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड तो जाएगा ही जाएगा. थ्रू रूट्स ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स आयंस, दैट इज SCO3 माइनस आयंस. ओके थ्रू द रूट्स. नाउ हाइड्रोफाइट्स गेट देयर carbon dioxide gas supply from the aquatic environment as a bicarbonate, okay, absorbed by the hydrophytes through their general surfaces. तो पानी के अंदर का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, सॉइल के अंदर का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, और एटमॉस्फेयर का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है. ठीक है. तो आपने तीन जगहों के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस देखे. सो हाइड्रोफाइट्स के रिस्पेक्ट में देखा बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स आपने देखा विद रिस्पेक्ट टू द रूट्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने देखा डायरेक्टली थ्रू द स्टोमेटा. ओके दैट इज द एरियल. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द वाटर ओवर हियर. Okay, that is the second water is the requirement na. So Van Nihil, okay, according to Van Nihil in the year of 1931, while working on a type of the photosynthetic bacteria, found that they required hydrogen sulfide for their carbon fixation. There is no evolution of oxygen. सल्फर ग्लोबुल accumulated as a waste product. तो यहाँ पे जो सल्फर है that is considered as a waste product. Obviously in this photosynthetic bacteria, carbon dioxide did not split up as there was no evolution of oxygen. Hydrogen sulfide was broken down to provide the hydrogen for the reduction of carbon dioxide gas. As a result of sulfur gets accumulated. Okay, so this is how the reaction which we had discussed in the first lecture also, ki 6 carbon dioxide and the 12 hydrogen sulfide will react together to form the organic compound, that is a glucose. 6 water molecule will be released and sulfur as a waste product will be released from here. It is an anoxygenic process. Okay. Now from the above observation and conclusion, Van Nile proposed that oxygenic photosynthesis of all organism is actually an oxidation reduction reaction. So what is the kind of reaction taking place over here? Oxidation and the reduction reaction has been taken over here, involving the action of hydrogen of water over carbon dioxide to form the organic compound. He proved that oxygen is evolved from the water. So this is the very, very important statement which we get from the Van Nile, okay, experiments. Now let's see हिल रिएक्शन. तो रॉबिन हिल का जो नाम है वो आ चुका है आपके स्क्रीन पे 1937. ओके इल्यूमिनेटेड द आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट करके निकाला of Stellaria media in the presence of the leaf extract of, you can say, leaf extract or the hydrogen acceptor. हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहाँ पे क्या है? फेरीसाइनाइड्स, क्रोमेट्स, या फिर बेंजोक्यूनाइंस, डाइक्लोरोफिनॉल्स, इंडोफिनॉल्स, ओके एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन एब्सेंस ऑफ CO2 द क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व्ड इज ऑक्सीजन. जैसे कि यहाँ पे सीधा रिएक्शन पे आता हूं. सी एक बीकर लिया. ठीक है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर इज वन बीकर इज देयर. बीकर के अंदर कल्चर मीडिया डाल के रखा है विच इज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्री मीडियम बोला गया है इसको. सबसे पहली बात यही है आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्री मीडियम है. ओके यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब सेपरेट करके डाले हुए हैं. ओके इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट रिएक्शन देयर इज एक्चुअली reduced hydrogen acceptor molecules are also added over there. और इसके थ्रू इससे ये पता चलता है कि लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रहा है. समझ में आ रही है बात? दिस इज हाउ एक्चुअली द हिल हैज एक्सप्लेन्ड हिज रिएक्शन. ओके तो जैसे कि देखो यहाँ पे 2A and 2H2O लाइट के प्रेजेंस में, दैट इज इन द क्लोरोप्लास्ट,
2AH2 formation has been taking place and there is a release of the oxygen. Okay, where A is what, so it represent the hydrogen acceptor. समझ में आ रहा है? तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो एक्सेप्टर था किसका, हाइड्रोजन का, तब जाके तुम्हारा ग्लूकोज बन रहा था. सिनेरियो समझ में आ रही है बात? तो दिस इज हाउ ही इज एबल टू एक्सप्लेन दिस कि ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द वाटर. Okay, now see evolution of the oxygen from the isolated illuminated chloroplast in कार्बन डाइऑक्साइड फ्री मीडियम हैविंग हील ऑक्सीडेंट. तो हम लोग उसको क्या वर्ड यूज करते हैं, हील ऑक्सीडेंट. दिस हाइड्रोजन एक्सेप्टर आर आल्सो कॉल्ड एज अ हील ऑक्सीडेंट. ठीक है, while the reaction involving the production of the oxygen by the illuminated chloroplast in absence of the CO2 fixation is called as a Hill reaction. Okay, तो हिल रिएक्शन किसको कहते हैं कि CO2 फ्री मीडियम में जो भी चीजें एक्टिविटी करके कर दी गई, जिसको हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया गया, ओके, जिसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, वो सारी जो बातें हैं उसको हिल रिएक्शन कहते हैं. ठीक है. Now, Vishnaik and Okwa in the year of 1951 found that the natural hydrogen acceptor of the Hill reaction is NADP plus. Okay, so who is the natural hydrogen acceptor over here is NADP plus, जिसका full form होता है nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. I'm repeating again, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. नाम याद रख लो, रट्टा मार लो, दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि यही सारी बातें मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, तभी मैं ये सारा फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा. That time I will be only using the word NADP plus या फिर NADPH2 ऐसे करके ही ये सारे टर्म्स को मैं यूज करूंगा. ठीक है, समझने के लिए देखो यहाँ पे NADP plus plus H2O react together in presence of the light and the chloroplast में ये सारी बातें हो रही है. तो ये formed हो रहा है NADPH plus 2H plus, that is the protons you can say, and the oxygen is released over here. तो किस में reduce हो गया, NADPH में reduce हो गया. Okay, तो ये सारी बातें थी. यहाँ पे हिल रिएक्शन जो है वो खत्म हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द चैप्टर. लेकिन बिफोर एंटरिंग इनटू द चैप्टर इन डिटेल, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक चलेगा वो चलेगा फोटोसिंथेसिस, फिर हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन को लेके. ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्विक, यू कैन से रिकैप, kind of recap only. Okay, photosynthesis normally takes place in presence of the sunlight only. Here it is like continuous process throughout the day and night, sun and dark, you can say. No मतलब पॉज पीरियड नहीं है इसमें. ठीक है, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द डे एंड नाइट इन सन एंड डार्क. ओके, नाउ सी अ प्लांट कैन लिव विदाउट फोटोसिंथेसिस फॉर ए नंबर ऑफ डेज, लेकिन नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट रेस्पिरेशन इवन अ फ्यू मिनट्स ऑल्सो. ठीक है, ये सांस लेने, सांस रुकाना इज अ डिफरेंट सिनेरियो. ओके, लेकिन बिना सांस लिए तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता. ठीक है, ओनली ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ accomplishing the photosynthesis. It utilizes the CO2 and water. All the cells of an organism can perform respiration. क्योंकि हम लोग इसको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे आगे जाके, ह्यूमन रेस्पिरेशन भी आएगा. प्लांट रेस्पिरेशन में भी हम लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि ईच एंड एवरी सेल इज गोइंग टू डू द रेस्पिरेशन एक्टिविटी. ओके, ये ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ना है. ओके, it gives out energy and therefore it is called as the exergonic process. Exergonic process, very very important term has been used over here. Now see, photosynthesis is an anabolic process. Starting में ही मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पे कुछ बनेगा जिसका यूज हम लोग आगे यूज करेंगे, जिसको तोड़ेंगे. ठीक है, हमारी एनर्जी के लिए. So it is a catabolic process. It builds up the complex compounds from the simple inorganic compounds, whereas over here in which the complex substances actually broken down into the simple substances. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. चलो, इतनी सारी बातें समझने के बाद थोड़ा और भी कुछ पॉइंट्स है इंटरेस्टिंग हो सकते हैं. चलो देखते हैं. इट इंक्रीजेस द वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. Here it decreases the weight of the organisms. Okay, it changes the radiant energy into the chemical energy with oversee over here the release of the potential or the chemical energy which is used variously in the body. Okay, जो energy release होती है वो use की जाती है by body, you can say. Okay, the raw materials of the photosynthesis are carbon dioxide and water, whereas over here the raw material of the respirations are sugars and oxygens. है ना, इसी को तो हम लोगों को यूज करना है. The end products are carbohydrate and oxygen, whereas here end products are जिससे बनाया था वही तो रिलीज होगा, like carbon dioxide and water. ठीक है, just opposite you can say. Gases exchange involves the release of oxygen and absorption of carbon dioxide, whereas here vice versa. Gases exchange involves the absorption of oxygen and evolution of carbon dioxide gas. Next, it produces ATP by harvesting the light energy. It respiration from ATP from energy liberated during the oxidation of the food. Okay, hydrogen of water is used in synthesis of NADPH. Hydrogen of food is used in formation of NADH, NADPH.
एंड FADH2, ये सारे रिड्यूसिंग पावर्स है जो कि हम लोग आगे जाके डील करेंगे ही. ओके, नाउ सी, ATP and NADPH are employed in synthesis of the organic compound, whereas here ATP and reduced coenzymes are made available to the cell for the various metabolic process. ये कैसे होगा, ये सारी बातें हमको डिस्कस करना बाकी है. सो फिलहाल के लिए बेसिक सी बातें जो यहाँ पे जो ये बोलते हो ना, जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में आप लोगों ने समझी है, उसको ध्यान में रखो. ओके, यही सारी बातें हम लोग पूरे चैप्टर में डील करेंगे. आराम से ये सारी बातें आपके माइंड में क्लिक होते जाएगी जैसे जैसे आगे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ना कि आपने ये पॉइंट इधर इधर पढ़ा करके. ठीक है. नाउ वी आर एंटरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिसको कहते हैं पिगमेंट इन्वॉल्व्स इन द फोटोसिंथेसिस. ओके, तो क्या क्या ऐसे पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेंगे. सबको पता है कि क्लोरोफिल आता है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट, वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि वही परफॉर्म करता है, बाकी सारे भी करते हैं. फर्क कितना है कि क्लोरोफिल बहुत ज्यादा अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करता है, वेरस बाकी के जो पिगमेंट्स है वो लेस और यू कैन से निग्लिजिबल अमाउंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं. इसलिए सबसे टॉप प्रायोरिटी चले जाता है क्लोरोफिल के पास, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो ऐसे मानते हैं कि जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो इतना कम पड़ जाएगा कि जिसके कारण ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस जो भी बनता है वो नहीं बन पाएगा. ठीक है. सो वाइस वर्सा, यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट ओवर हियर. तो अभी चलो एक एक करके सारे पिगमेंट्स को खोल देते हैं हम लोग अभी. ठीक है. 4 टाइप्स ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स. ओके, सो सी क्लोरोफिल ABCDE, कितने टाइप के क्लोरोफिल है ABCDE, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए ना. ओके, आउट ऑफ दिस ओनली 2 क्लोरोफिल्स दैट इज ऑकर इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स, दैट इज A एंड द B. ए और बी जो है वो आपको हायर प्लांट्स में देखने मिलेंगे, दैट इज इन द क्लोरोप्लास्ट रीजन. अभी उनमें से भी ए और बी में से भी सबसे डोमिनेटिंग पिगमेंट जो है दैट इज अ क्लोरोफिल ए, व्हिच इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक सेल्स. ओके, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स यू कैन से एक्सेप्ट बैक्टीरिया. Therefore, universal photosynthetic pigment, also called as a primary photosynthetic pigment. Okay, because of it, it performs a primary reaction of the photosynthesis pigment, which involves the conversion of the light into the chemical energy or the electrical energy. ये सारी बातें blah 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 हम लोग already discuss कर चुके हैं. Okay, तो प्राइमरी पिगमेंट अगर पूछा जाएगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए खाली क्लोरोफिल ए, नॉट द क्लोरोफिल बी ऑल्सो. ओके, क्योंकि वो क्लोरोफिल बी हम लोग दूसरे सिनारियो के लिए यूज करेंगे, तो देखेंगे वो सारी बातें क्या होगी. अदर पिगमेंट कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट्स, देखो आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे वो स्टेटमेंट, अदर पिगमेंट कॉल्ड एज एसेसरी पिगमेंट्स. इवन द क्लोरोफिल बी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द एसेसरी पिगमेंट्स. ठीक है. सो एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. Okay, broaden the spectrum of the light absorption and hand over the energy to the chlorophyll A through an electron spin resonance. तो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस वगैरह क्या है ये आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा. लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक. सी, some of the chlorophyll A molecule functions as reaction center, जहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है P700 and P680. ओके, तो दो फोटो सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक होता है P700 और एक होता है P680. सर ये क्या है बेटा, ये वही बात है जो दो इंपॉर्टेंट फोटो सिस्टम्स होंगे P700 एंड P680. दीज आर आवर रिएक्शन सेंटर, जो हम लोगों ने पहले से ही सुना था. ओके, पहले से ही ये बातें सुनी थी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों ने कहाँ सुना है. ओके, देयर आर 2 फोटो सिस्टम्स जो कि आगे जाके लाइक मैंने बोला था क्वांटासोम्स आप लोगों को पढ़ना है करके. ठीक है, यही पे हम लोगों ने पढ़ा था ना. नहीं ये नहीं है, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. ठीक है, चलो वो बातें तो बाद में भी डिस्कस कर लेते हैं, यहीं पे होना चाहिए था. ठीक है, डोंट वरी, आई विल बी शोइंग यू दैट अगेन. ओके, फिर कभी बताता हूँ वो किधर हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड विद द फोटो सिस्टम. क्वांटासोम्स वाली जो एक्टिविटी है उसको आगे बढ़ाते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली. टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है. बैक्टीरिया possesses 2 टाइप्स ऑफ द रिलेटेड पिगमेंट्स. इसके अलावा देखो बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए एंड द बैक्टीरिया विरिडीन, ये आपको दो पिगमेंट सिस्टम जो है वो कंपलसरी याद रखनी है. ओके, क्या करना है, इसको कंपलसरी आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यही से क्वेश्चंस आते, देखो EXIMP लिख के रखा है. ओके, सो बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए एंड द बैक्टीरिया विरिडीन, ये सारी बातें ऑप्शनल है, याद करना है करो, नहीं करना है देन ऑल्सो इट इज नो प्रॉब्लम. ओके, क्लोरोफिल ए जो होता है इट इज अ ब्लूइश ग्रीन कलर जो कि प्योर स्टेट में होता है. ओके, और इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट रहेगा. वेर एज क्लोरोफिल बी जो होता है सी ऑलिव ग्रीन कलर का होगा प्योर स्टेट में.
इवन द मैग्नीशियम इज प्रेजेंट ओवर हियर ऑल्सो। तो क्लोरोफिल्स में आपको मैग्नीशियम देखने मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट नोट बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी आर सॉल्युबल इन, देखो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो है मोर सॉल्युबल इन द पेट्रोलियम ईथर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफिल जो है मोर सॉल्युबल इन द 90% ऑफ द मिथाइल अल्कोहल। Now let's move ahead. Chlorophyll structure. It's the first studied by the Wills-Adler, Stahl, Fisher in the year of 1912. Tadpole-like configuration with. Okay. तो tadpole like configuration का मतलब क्या है कि उसके पास हेड एंड टेल रीजन होगा, देखने को मिलेगा आपको आगे जाके। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैं स्लो हो रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देके बात सुनना मेरी, क्योंकि स्ट्रक्चर आगे बताऊंगा जिसके कारण आप लोग इन शॉर्ट क्या सीख रहे हो, तो क्लोरोफिल का डायग्राम सीख रहे हो। ओके, भले ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट सिंस यू विल बी हैविंग अ बेसिक आइडिया कि कैसे कंपैरेटिवली टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो हेड जो होता है क्लोरोफिल का, इट इज मेड अप ऑफ पोरफायरिन। टेल जो होता है, इट इज अ लॉन्ग चेन अल्कोहल कॉल्ड एज अ फाइटोल। ओके, बड़ी सी चेन होगी, लाइक यू कैन से 20 कार्बन की चेन होगी, इतनी बड़ी टेल होती है उसके पास। ठीक है, नाउ porphyrinated made up of 4 pyrrole rings। तो एक्चुअली एक मैग्नीशियम और 4 पायरोल रिंग्स होंगे, ये देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर में, विच आर लिंक्ड बाय द मिथाइन ब्रिजेस। ओके, वो कैसे लिखा है, बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। ओके, इस तरीके से होगा, मैं आपको बताऊंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस का आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, खाली गो थ्रू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, द स्केलेटन ऑफ द ईच पायरोल रिंग इज मेड अप ऑफ 5 एटम्स। ओके, 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। तो हर एक नाइट्रोजन, जो 4 रिंग के एक एक नाइट्रोजन जो है वो तुम्हारे मैग्नीशियम के साथ जुड़े रहेंगे। ओके, लेटर लाइट्स टुवर्ड्स द सेंटर। A non-ionic magnesium atom is in the center of the porphyrin head by the nitrogen atoms of the pyrrole ring। तो यही मैं बता रहा था कि मैग्नीशियम जो एटम्स है वो नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द porphyrin रिंग, पायरोल रिंग के जो होते हैं ना, वो उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, next the external carbon atom of the pyrrole ring have been given specific numbers like 1 to 8 numbers देके रखे हैं। कार्बन atom 1 3 5 and 8 have the methyl group, okay, that is a CH3, whereas in chlorophyll B the carbon 3 has the aldehyde group। ये आपको एक ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक के ऊपर मिथाइल रहेगा और एक के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। अगर कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप मिला तो वो क्लोरोफिल ए हो जाएगा, अगर कार्बन नंबर 3 के ऊपर तुमको एल्डिहाइड ग्रुप मिला तो वो तुम्हारा क्लोरोफिल बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ कार्बन एटम 2 possesses a vinyl group, okay, जो कि यहाँ पे मेंशन है, while carbon atom 4 has an ethyl group। okay, तो ये सारी बातें जब आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे उसमें दिख जाएगा। कार्बन एटम 6 is attached to the next methane, okay, group by a fifth isocyclic ring called as a cyclopentane। Carbon atom 7 of the fourth pyrrole ring is connected to the phytol tail through a propionic acid residue। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला कार्बन नंबर 7 पे हम लोगों को 20 कार्बन की चेन देखने मिलेगी, जिसको पायरोल रिंग के हिसाब से फाइटोल टेल नाम दिया गया है। ओके, फोर्थ पायरोल रिंग होगी, ओके, कनेक्टेड टू द फाइटोल चेन थ्रू अ प्रोपियोनिक एसिड रेसिड्यू। मैं बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये रहा डायग्राम आपके सामने। ठीक है, ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूमिंग कम कर देता हूँ सो दैट आप लोग पूरा डायग्राम जो है वो एट ए टाइम देख सके। तो समझ में आ गई बात। देखो, ये हो गया मैग्नीशियम सेंटर में, और ये रह गई 4 पायरोल रिंग। ओके, 1, देखो 1 यहाँ पे रोमन नंबर 1 लिखा है, यहाँ पे रोमन नंबर 2 है, यहाँ पे रोमन नंबर 3 है, और यहाँ पे रोमन नंबर 4 है। और ये रिंग इस तरीके से है, 4 की चारों के जो नाइट्रोजन है वो मैग्नीशियम के साथ बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये आपको एक ध्यान में रखना है, 4 पायरोल रिंग्स। ओके, और एक और होता है जो कि 5 कार्बन की रिंग होती है, जिसको पेंटोन रिंग भी कहते हैं, वो बाद में लेबलिंग की गई है। तो नंबरिंग देखो, सबसे पहले 1 2 3 एंड 4 ऐसे जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग जा रही है रिंग की। लेकिन जो तीसरा वाला जो पायरोल रिंग है उसके साथ पेंटोनॉन रिंग वहां पे जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। अब नंबरिंग देखते हैं कार्बन के ऊपर। देखो, अगर आप लोग ठीक से देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, फिर यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है, तो 3 के ऊपर देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह पे एल्डिहाइड ग्रुप होता तो तुमको और वो क्लोरोफिल बी होता, ये समझ में आती है बात। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो फिर से हाईलाइट करो, ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, दिस इज द क्लोरोफिल ए। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता यानी CHO ग्रुप होता, सो इट विल बिकम क्लोरोफिल बी।
ओके इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। और हम लोगों ने बोला था कि 7th कार्बन ऑफ द 4th पायरोल रिंग, तो ये रही चौथी पायरोल रिंग जिसका 7th कार्बन यहाँ पे नंबरिंग करके रखा है। सो सी 5 6 यहाँ पे है और 7 8 का नंबरिंग यहाँ पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 7th वाले कार्बन के साथ ये पूरा 20 कार्बन का चेन यहाँ पे बड़ा सा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सो दिस इज हाउ द चेन हैज बीन सीन ओवर हियर, जिसको एक साथ कहा जाता है फाइटोल टेल। ओके क्या कहा जाता है इसको? फाइटोल टेल करके लेबल किया जाता है। ओके यू कैन सी द स्ट्रक्चर वेरी केयरफुली ऑन द स्क्रीन। ओके ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं, तो एक मैग्नीशियम आयन जो है वो बीच में रहता है, 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। ओके 7th कार्बन ऑफ द 4th पायरोल रिंग विल बी शोइंग अ फाइटोल टेल। ओके 4 पायरोल रिंग जो होते हैं वो हेड बनाते हैं, ओके विथ 1 पेंटानॉन रिंग। इतनी ही बात आपको ध्यान में रखना है। 3rd कार्बन पे होता है मिथाइल ग्रुप, तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल ए। अगर 3rd कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोफिल बी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग विच यू हैड स्टडीड फ्रॉम हियर, जो कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर था। चलो अगर इतनी सारी बातें अगर आपको फिर भी डिफिकल्ट लगती होगी, मुझे नहीं लगता अभी अगर मैंने ये जो पैराग्राफ बताया अगर वो आप लोगों ने कर लिया तो वो इससे भी काम बन जाएगा होगा। वो कौन सा पैराग्राफ है? तो देखो तुम्हारे स्क्रीन पे आ गया है ना, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड द क्लोरोफिल बी। ये भी कर लिया ना तो भी बेटा आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ओके सो सी ओवर हियर, इट इज अ C55H72O5N4 magnesium. This is the normal structure has been mentioned over here. यहाँ पे भी C55H70O6N4 magnesium. Okay, formula दिया हुआ है। In pure state, chlorophyll A is blue green in color, whereas it is olive green in color, जो already discuss किया था। Chlorophyll A is a primary photosynthetic pigment, whereas C it is a accessory photosynthetic pigment. तो primary photosynthetic pigment में हम लोग chlorophyll B को consider नहीं करते, भले वो green color का हो, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए ही करके देता है। ओके इसके अलावा इट इज soluble in petroleum ether, which is very very important term you should remember over here. It is soluble in 92% of the methyl alcohol. Okay then 3rd carbon contains the methyl group, whereas here 3rd carbon contains the aldehyde group. It absorbs the more red wavelength, that is see violet, देखो इसको ठीक से देखो, it absorbs more red wavelength than violet blue wavelength of the light, whereas over here it absorbs more violet blue wavelength than the red wavelength of the light. ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि yes it is a challenging type of questions यहाँ से बनते हैं। ओके अभी तक हम लोगों ने पिगमेंट सिस्टम में खाली क्लोरोफिल ए के बारे में ही बात की है। किसके बारे में बात की है? क्लोरोफिल ए के बारे में बात की है एंड क्लोरोफिल बी के बारे में बात करी है। इन शॉर्ट में बताऊं आप लोगों को, तो हम लोगों ने खाली ग्रीन पिगमेंट के बारे में बात की है। ओके अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द कैरेटिनॉइड्स। दे आर एक्चुअली येलो ब्राउन इन कलर, ओके टू द रेडिश पिगमेंट। ओके येलो ब्राउन टू रेडिश कलर पिगमेंट होते हैं कैरेटिनॉइड्स, व्हिच आर एसोसिएटेड विद द क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ओके बट ऑकर alone inside the chromoplast along with chlorophyll B. The carotenoids are also called as the accessory pigments. Okay, so again the carotenoids is a part of the accessory pigment. मतलब A को छोड़ो, क्लोरोफिल A को छोड़ो, तो बाकी सारे जो पिगमेंट्स अभी जितने भी हम लोग पढ़ेंगे सब एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ओके बेटा ये सारी बातें ध्यान में रखना है। बिकॉज दे हैंड ओवर द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय देम टू द क्लोरोफिल ए। मतलब ये ऐसे होता है ना, अगर गैस पे मैंने देखो गैस के ऊपर मैंने एक पानी भर के पतीला रख दिया, ठीक है, पतीला को मैं गर्म होने के लिए छोड़ दे रहा हूँ, तो पानी का एक मॉलिक्यूल गर्म होने लगेगा, क्योंकि जो मेटल में से हीट एनर्जी जो जा रही है वो वाटर मॉलिक्यूल में जा रही है। पहले नीचे की लेयर गर्म होने लगेगी, फिर धीरे धीरे वो एनर्जी विल बी सप्लाइड टू द हायर लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट, हायर लेवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसे करके एनर्जी जब पूरे वाटर मॉलिक्यूल को सप्लाई होने चालू हो जाएगी तो पानी उबलने लगेगा। दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ओवर हियर, ठीक है। तो मानो बहुत सारे पिगमेंट्स है लेकिन खाली बीच में है क्लोरोफिल ए पिगमेंट, ठीक है। तो आजू बाजू के जो क्लोरोफिल रहेंगे ना वो पूरी सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ओके, फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, वो पूरा एनर्जी विल बी सप्लाइड इन द सेंटर पार्ट, ओके, दैट इज टू द क्लोरोफिल ए, और वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ओके दैट इलेक्ट्रॉन रिलीज इज नथिंग बट वी आर एंटरिंग इनटू द लाइट रिएक्शन। वो कैसे होगा ये सारी बातें आगे जाके डिस्क्राइब करनी बाकी है, फिलहाल के लिए आगे बढ़ रहा हूं। ओके सो कैरोटिनॉइड्स हैव द कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। मतलब देखो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मतलब अल्टरनेट, यू कैन से वन कार्बन और बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे चलते रहेगा। ओके अल्टरनेट अरेंजमेंट। दे are two types, carotenes and the xanthophylls. So अभी carotene and xanthophylls comes under carotenoids. Okay ये ध्यान में रखना। So now what are carotenes, अभी ये बात चल रही है। So we are in short in the topic called as the carotenoids itself. They are orange colored hydrocarbons with a general formula C40H56.
रेड कलर ऑफ द टोमेटो एंड द चिलीज इज ड्यू टू द कैरोटीन कॉल्ड एज अ लाइकोपिन। ये हम लोगों ने अभी जस्ट जो एक लेक्चर खत्म किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने ये सारी बातों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट एंड द क्रोमोप्लास्ट वाला जो टॉपिक डील किया था उसको देखो ठीक से, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कैरोटीन इज बीटा कैरोटीन। इट इज कन्वर्टेड इनटू सी और विटामिन ए। जिनको विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उनको ब्राउन कलर की राइस खाने की डॉक्टर सजेस्ट करता है ना, क्योंकि ब्राउन कलर के राइस में विटामिन ए आपको ज्यादा देखने मिलता है, ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसके अंदर बीटा कैरोटीन की जीन होती है। ओके, बाय द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। ओके, इट इज कन्वर्टेड टू द विटामिन ए बाय एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस। So see, this is how the beta carotene structure. This is reacting with the water to form the vitamin A. So this is the structure of the vitamin A. मतलब दिया हुआ है आपके screen पे. Now we are entering into the second carotenoids that is called as the xanthophyll, which is equal to the carotenols. Okay, so they are yellow colored oxygen containing derivatives of the carotenes C40H56O. ओके, जिसको क्रिप्टोजैंथिन भी कहा जाता है। C40H56O2 जो है इसको ल्यूटीन कहा जाता है या फिर जियाजेंथिन कहा जाता है। It is a yellow color and autumnal foliage is due to the lutein. Okay, the characteristic xanthophyll of brown algae is fucoxanthin, जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 11th में प्लांट किंगडम में ब्राउन एल्गे पढ़ चुके हो। ठीक है, सो C40H56O6 उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद रखो, नहीं रखो वो ऑप्शनल है, लेकिन पिगमेंट सिस्टम जरूर याद रखना है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ओके, नाउ सी, both carotenes and the xanthophylls are soluble in organic solvent, okay, like chloroform, ethyl ether, etc., etc. Carotenes are more soluble in the carbon disulfide as compared to the xanthophylls. Now we are entering into the next pigment जिसका नाम है phycobilins. They are open tetrapyrols which neither contain magnesium nor phytol. मतलब magnesium भी इसमें present नहीं होगा, nor even the phytol ring, मतलब जो phytol chain देखी थी हम लोगों ने 20 कार्बन की, वो भी इसमें नहीं देखने मिलेगी. Phycobilins are water soluble, however they occur in the association with the proteins, or you can say this is a by proteins. Okay, the pigments are of two types, blue and phyco. देखो ब्लू कलर पिगमेंट जिसका नाम है फाइकोसाइनिन, ओलोफाइकोसाइनिन, एंड द रेड जिसका नाम है फाइकोएरिथ्रिन, जो कि रेड एल्गे में ऑलरेडी आप लोगों ने कवर कर लिया। द पिगमेंट्स आर यूजफुल इन द क्रोमैटिक एडेप्टेशंस. दे आर इंपॉर्टेंट नेसेसरी पिगमेंट्स of blue green algae. Okay, then see copternots and the red algae. The blue green and the red algae, the phycobilins are found in the submicroscopic structures called as the phycobilisomes attached to the thylakoids. तो ये एक extra additional information, if you want you can go ahead, otherwise no problem at all. Okay, now see, note chlorophyll A which is acting as a reaction center and other pigments act as a accessory pigment. मतलब इसमें chlorophyll B भी आ जाएगा, carotenoids आ जाएगा, xanthophylls आ जाएगा, fucoxanthophylls आ जाएगा, phycoerythrin, ये सारी बातें जो हम लोगों ने बात की है वो सारी बातें यहाँ पे आ जाएगी. Okay, as a accessory pigments. Okay, so here I will be stopping our lecture. नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एमर्सन इफेक्ट को और डिटेल में बात करेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक खाली पिगमेंट्स को लेके ही डिस्क्राइब किया है, धीरे धीरे आगे जाएंगे सो दैट यू विल आल्सो बिकम फेमिलियर विद द चैप्टर. ओके, रीड योर एनसीईआरटी. ओके, चलो बाय बाय.